हाँ जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું અકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા ચરણ મારે રહેવું છે, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા મારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત
પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, નવકલમો. ખુશી અમદાવાદ નંબર 1. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. શ્રેયા નંબર 2. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એ ત્યાગવાદ વાણી, ત્યાગવાદ વર્તન અને ત્યાગવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ઓકે, ઓનલી કરિશ્મા નંબર 1. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય કે દુભાવ પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભે એવી સાદ્વાદ વાણી, સાદ્વાદ વર્તન અને સાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. क्या बात है, वेरी गुड. नंबर 2 करिश्मा. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ના દુભાય કે દુભાવ કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ના દુભે એવી સાદ્વાદ વાણી, સાદ્વાદ વર્તન અને સાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. નંબર 3 કરિશ્મા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી या आचार्य अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो. वेरी गुड. नंबर 4 आता है. हाँ, आता पूरी नौकल आती है. बोलो 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 बोलो. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સાથે ક્યારે પણ अभाव तिरस्कार ना किया जाए, ना करवाया जाए के कर्ता के प्रति ना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાય જાય કે બોલવા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મધુરથી ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. Very good, Karishma. Keep it up, okay? Darshan number 5. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંત્રી ભાષા ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંત્રી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. Monica number 6. હા, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ યા નપુંસક ગમે તે દેહધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ના કિયા જાય, ના કરવાયા જાય, કર્તા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Okay, અમદાવાદ, ચેન્નાઈ, ખુશી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. ખુશી અમદાવાદ.
હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Divya, number 9. ભગવાન મોરે જો ગુટખયા કરવાનો લિમિટ બોલવાનો કોલમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. Very good. Okay. Paresh Dada, Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। 3 मंत्र बुलाए परेश दादा, बाढ़ को फॉलो करेगा आपको। अच्छा, नमो वीतरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો હરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो उवज्जायाणम, નમો વજ્રાયાણમ, नमो लोये सव्व साहुणम, નમો સર્વસાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચનમુક્કારો, वप्पणासणो, વપણાસણો, मंगलाणं च सव्वेसिं, મંગલાણમ ચ સૌવેશેમ, पडमं हवै मंगलम्। પરમં હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Akushi Ahmedabad. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जैसे कैसा रहा मम्मी के साथ आज? आज अच्छा रहा। ओके, वेरी गुड। चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी आप सक्षम चाहते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई से ढंग से हो, इसलिए आज मुझे जय सच्चिदानंद। दिव्या। भगवान, હે દાદા दादा ભગવાન, हमने आपके बच्चे, हम हैं हम हैं आपके आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, दिल भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। हाँ, हम करेंगे करेंगे। अच्छे। ओके, जय अव्यय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय अव्यय, सच्चिदानंद। अव्यय हिंदी।
Dada Bhagwan separation prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हैं, अव्यय अलग हैं। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हैं, अव्यय रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट है, अव्यय टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। Chinai. જય સચ્ચિદાનંદ હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો મોનિકા જુદા છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો મોનિકા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો મોનિકા ટેમ્પરરી છે જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। ओके, अभी खुशी अहमदाबाद ने बोला कि हम पढ़ाई में सिंसियर होगा, तो अभी मिड ईयर एग्जाम कब है और कैसे स्टडी प्रिपरेशन होता है और बोलना। तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान, मैं अपनी हेल्थ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूँ ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को जाने की पढ़ाई में सत्संग में मदद हो। मैं पढ़ाई में रहूंगा। मैं पूरी सोबत से कसम से कायम दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसे आप परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग की और परोपकार रहने की जीव मात्र की सेवा में करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं की और अन्य सभी लोगों के जीवन आहार में शुद्ध नैतिक और विश्वसनीय बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट कमानी बन पाऊं। ये दादा भगवान, मैं अपने माता पिता को कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा, ऐसा मैं संपर्क करता हूँ। नो, हमने बोला कि आप अभी मिड ईयर एग्जाम कब है और प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। तीर्थ, अच्छा अच्छा, कब है मिड ईयर एग्जाम, कब है? मेरी हाँ, ओके। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी एग्जाम 7 अक्टूबर को है और मेरी प्रिपरेशन अभी अच्छी चल रही है। कौन सा वीक सब्जेक्ट है? मैथ्स। ओके, सब प्रिपरेशन कैसे है बताओ। हाँ, प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है। ओके, श्रेया। मेरी मिड टर्म एग्जाम शुरू हो गई है और मेरा वीक सब्जेक्ट हिंदी है। ओके, आपने कैसा रिजल्ट आ गया, कैसे गया मिड टर्म मिड ईयर? मिड ईयर अच्छा गया है, अभी भी शुरू है। कल एग्जाम है फिर से, पर रिजल्ट सबको थोड़ी देर के बाद आए। ओके, बताना हमको। ओके, चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद मेरी क्वार्टरली एग्जाम 21 वेडनेसडे को स्टार्ट हो रही है और मेरी प्रिपरेशन अभी एग्जाम्स चल रही है तो उसमें चल रही है। सब सब्जेक्ट की चलती है? हाँ सच। वेरी गुड। करिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद मेरी क्वार्टरली एग्जाम 26 को स्टार्ट हो रही है मंडे को और मेरी प्रिपरेशन अभी मेरी टेस्ट एग्जाम चल रही है उसमें। तो सोशल स्टडी में कैसे स्टडी चलता है? अच्छा चल रहा है। खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद मेरी एग्जाम वेडनेसडे 21 को स्टार्ट हो रही है और मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ओके, अच्छी है ना। कौन सा सब्जेक्ट आपको? तो 2-3 सब्जेक्ट है। तमिल कैसा है आपका? मैंने हाफ ऑफ द पोर्शन कंप्लीट करा। ओके, कितना मार्क्स लेने का है आज? मुझे 60 आउट ऑफ सॉरी 60 आउट ऑफ मुझे 50 अबव लाना है। ओके, दरअसल। हाँ, जय सच्चिदानंद मेरी मिड टर्म एग्जाम कल से स्टार्ट हो रही है और मेरा कल इंग्लिश का पेपर है। स्टडी कैसे है? सब सब्जेक्ट में स्टडी हो गया? हाँ, स्टडी हो गया, मैंने 2 बार रिवीजन भी कर लिया। और तो अभी बुक्स रिफर नहीं करने का है ना, अभी रख देने का ना, आराम करने का ना। नहीं। ओके, दर्शना। जय सच्चिदानंद मेरा मिड टर्म एग्जाम्स 26 से शुरू हो रहा है और मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अच्छी यानी कितना मार्क्स आने वाला है? अच्छे मार्क्स आएंगे।
कितना? अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे यानी 10 मार्क? नहीं, तो 80 above। 80 above. Very good. Itaksiva? जय सच्चिदानंद, मेरी एग्जाम 6 अक्टूबर को है और अभी पढ़ाई अच्छी चल रही है। कितना मार्क्स लाने का है? इस बार मुझे 90% अप मार्क्स लाना है। वेरी गुड। अव्यय? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरी 24 नवंबर से एग्जाम है, तो प्रिपरेशन अच्छी है। नवंबर में है? नवंबर में? हाँ नवंबर में। हाँ, इंटरेस्ट। ओके। मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बस मैथ्स में थोड़ी प्रिपरेशन वीक है, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। और मुझे 90 अबव लाने हैं। ओके, वेरी गुड। ये सब मैथ का प्रॉब्लम है, ये देखो परेश दादा और आप दीपक दादा दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैथ का वो वेरी पावरफुल है। ओके दीपक दादा? जय सच्चिदानंद। दो बातें हैं। पहली तो ये है कि ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो कभी इम्तिहान का, एग्जाम का डर नहीं रहेगा, ऊपर से कॉन्फिडेंस रहेगा। और जो सब्जेक्ट वीक है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देकर उसे मजबूत बनाना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओ परेश दादा, इन लोग के साथ बात करो। किसी को फियर आता है, एग्जाम के फियर आता है, क्यों? ऐसे क्यों होता है? किसको फियर आता है एग्जाम का? किसको फियर है? करिश्मा दीदी। करिश्मा, दर्शना, दूसरा किसको? खुशी को, खुशी अहमदाबाद, अहमदाबाद। और सबको आता है। तीर्थ को। परेश दादा? ऐसा है ना, फियर इसलिए आता है कि वो बात जो पढ़ाई करते हैं वो समझ से नहीं करते। समझ से करेगा तो थोड़ा परसेंटेज कम आएगा तो चलेगा, लेकिन समझ के साथ करना है पढ़ाई। जितनी समझ के करोगे फियर नहीं लगेगा। फियर इसलिए लगता है कि अपने को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मैंने पढ़ाई की, वो याद रहेगा कि नहीं, या तो मैं पेपर में लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। इसलिए समझ के साथ जब पढ़ाई करते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है। भले परसेंटेज थोड़ा कम आए, लेकिन जितना भी पढ़ो समझ के करना है। जितना समझ के साथ पढ़ाई करोगे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, समझने की कोशिश करने की। ये दादा भगवान का साइंस भी समझना है, उसको रटने का नहीं है, साइंस है। तो जैसे आप पढ़ाई में जितना समझ के करोगे, दादा का साइंस भी अच्छी तरह समझ पाओगे। इसलिए समझ के साथ पढ़ाई करनी है। जितनी समझ से पढ़ाई करोगे फर्स्ट क्लास कॉन्फिडेंस आएगा। वो पढ़ाई ही इसीलिए है कि आपकी समझ शक्ति खिले, समझ शक्ति बढ़े। ठीक है दादा, परेश मालूम जी। कैसे पड़ता है कि अंडरस्टैंड अच्छा करा? वो घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमने अच्छा अंडरस्टैंड किया है? वो तो घर पे किसी को बोलने का मैंने पढ़ाई की, वो पूछो आप, या तो खुद को चेक करने का कि मुझे याद रहा कि नहीं, मुझे समझ में आया कि नहीं। घर में मम्मी को या भाई को या बहन को पूछने का कि देखो जरा मेरे एक टेस्ट लो के देखो ना। तो टेस्ट लेके देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को समझ में आया कि नहीं, मैंने रटा है, कैसा है, चेक करने का। और सबसे ज्यादा खुद को चेक करने का कि मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो किसी को पूछने का, जिसको वो सब्जेक्ट में मास्टरी है उनको पूछने का कि भाई मेरे को समझाओ ना जरा। परेशान जी। जिसको जो सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क आते हैं, वो सब्जेक्ट अपना अगर वीक है तो जिसके ज्यादा मार्क आते हैं उनको पूछने का कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो, तो अपने को आइडिया आती है प्रिपेयर करने की। मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क आते थे, मैंने मेरे एक लीडिंग ये था मेरे क्लासमेट, मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे बहुत अच्छा तरह समझाया, तो मुझे ऐसा सेट हो गया
कि वो सेट होते होते इतना अच्छा सेट हो गया कि उससे ज्यादा मार्क मेरे आए। तो ऐसा है, समझना है और कुछ नहीं करना है। भले एक बार नहीं समझने को टाइम लगेगा, लेकिन जितना समझ के करोगे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत मजा आएगी, स्टडी करने की भी मजा आएगी। नहीं तो स्टडी करने का बोरिंग लगता है। समझ से करोगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत आनंद आएगा, भय तो बिल्कुल नहीं लगेगा। थोड़े कम परसेंटेज आएगा चलेगा, लेकिन काम समझ के करो जो भी करना है वो। दीपिका जी क्या बोलते हैं आप? ज्यादा मार्क आने से मास्टर बन जाएंगे या कुछ ज्यादा ये हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी समझ ज्यादा वो मास्टर बन जाता है। वो कहीं पर भी जाए, किधर भी जाए, कोई भी फील्ड में जाए, ऑटोमेटिक उसको बात समझ में आ जाती है, क्योंकि उसका समझना उसको मेन सेंटर हो गया, उसका बेसमेंट हो गया। ठीक है। दीपिका जी समझ क्या में आया बोलते तो- थे आप? मैं परेशान जी को ये पूछना और बताना चाहता था कि रटेंगे तो मार्क्स पेपर पर ज्यादा आएंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा। नहीं, और याद नहीं रहेगा, समझ खुद के- डब्बा जैसे रहेंगे, खुद डब्बा जैसे रहेंगे। लगेगा क्या बात है। अपन बन गए, अपने अच्छे मार्क आए, लेकिन है कुछ नहीं, क्वालिटी और नहीं निकल। समझ से पढ़ेंगे शायद उससे कम मार्क्स आएंगे, लेकिन वो कभी जाता नहीं कभी प्रैक्टिकल। जाएगा नहीं, क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी बनेगी। फैंटास्टिक। wherever you go in your life, you are always in success mode. और इवन सक्सेस नहीं हुए तो उसको सक्सेस बना सकोगे, बिकॉज यू हैव गॉट अंडरस्टैंडिंग पावर। तो अंडरस्टैंडिंग करना है, अंडरस्टैंड करना है, भले थोड़ा टाइम लगे, बट अंडरस्टैंड करना है कि क्या कहना चाहते, क्या है ये, क्या चीज है। नहीं समझ में आता है तो बड़ों को पूछो, टीचर को पूछो, फ्रेंड को पूछो, मम्मी पापा को पूछो, भाई को पूछो, बहन को पूछो, लेकिन पूछो, शर्म नहीं रखने की। एक बार समझ में आ गया ना, मजा आ जाएगी आपको। समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना समझ में आएगा उतना आपका खुद का क्वालिटी बन जाएगा, और आपको वो क्या बोलते हैं, बोझा नहीं लगेगा। समझ से बोझा नहीं लगता है, रटने से बोझा लगता है। पढ़ाई बोझा लगती है, पढ़ाई ही है इसीलिए बच्चों लोगों को कि उनकी समझ शक्ति खिले, समझ शक्ति बढ़े उनकी। समझ शक्ति बढ़ाने के लिए ही पढ़ाई है। बात समझ में आई खुशी? हाँ। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो घबराते क्यों हो कि कम मार्क आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ उसमें क्या है, क्या कुछ फिक्र नहीं करने की। अभी तो जिंदगी के एग्जाम तो बहुत आने वाली है, तो पढ़ाई में क्या घबराने का। हाँ, बिंदास रहने का, कोई फिक्र नहीं करने की, मस्त थोड़ा जितना समझ में आए उतना पढ़ के जाने का, कोई फिक्र नहीं करने की, लेकिन समझ के पढ़ने की। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। पढ़ाई करने को भी एंजॉय करना चाहिए। अगर आप रट के करोगे, टेंशन लोगे, तो एंजॉय नहीं कर सकोगे आप। इसलिए एंजॉय करना है, पढ़ाई को भी एंजॉय करना है। जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद दूसरा काम आएगा, आप नौकरी जाओगे, कहीं काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो आप एंजॉय नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है एंजॉय करने की। रटने की आदत पड़ गई। तो ऐसा अभी से गलत काम मत करो। भले थोड़ा कम मार्क आएगा चलेगा, लेकिन समझने की कोशिश करो, बहुत काम में आएगी, बहुत काम में आएगा। ठीक है। तो अभी अब परेश दादा ने क्या बोला आपको? आपको कैसे टेस्ट करेगा? हम समझ के पढ़ेंगे, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए एग्जाम होती है तो। नहीं, समझने से घबराहट नहीं होगी, घबराहट होगी नहीं। और रट के जाओगे तो घबराहट होगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ख्याल में है ना? तो घबराने का नहीं है, समझ से जाने का। मस्त। तो परेश दादा ने समझ से बोला ना, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। समझ से करोगे ना तो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। आप पढ़ाई को एंजॉय करोगे, दूसरों को सिखा सकोगे, दूसरे के साथ डिस्कस कर सकोगे। जो रट के जाएगा ना, वो तो सुनेगा भी नहीं किसी की बात, इधर उधर देखेगा भी नहीं,
चुपचाप एग्जाम में चला जाएगा और बोला अच्छा है अच्छा है, ऐसा प्रार्थना करे कि भगवान को प्रार्थना करे। इसलिए ऐसा नहीं करने का, समझने का। हाँ, तो कौन है हाँ। कैसे टेस्ट करते हैं घर पे कि मैंने अच्छा पढ़ा समझा कि नहीं? कोई करते हैं ऐसा? वो टीचर के साथ के कोई किसी का कोई करते हैं ऐसे? मोनिका? टीचर के साथ करती हूँ। वो टीचर हर की रोज ओके। आप ये श्रेया तो मम्मी के साथ करती है, हमको मालूम है। तो खुशी अहमदाबाद टीचर के साथ। टीचर का टाइम मिलता है? और ट्यूशन वाला टीचर क्या? हाँ। अच्छा, वो ट्यूशन वाला। दरअसल अब ये समझने वाला खुद के साथ टेस्ट बहुत अच्छा कर सकता है। समझने वाला खुद के साथ ही टेस्ट करता है, अपने आप को चेक करता है कि मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। खुद को ही टेस्ट करता है, खुद ही टेस्ट लेता है खुद की। बहुत बढ़िया चीज है वो। तो परेश दादा शुरुआत में ऐसा नहीं होता है, शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा वो सीखोगे तो अपने आप आ जाएगा वो अपनी टेस्ट लेने की। मैं ही अपने आप को बोलूंगा अगर तुमको समझ में आए तो चलो लिखो इस बात को, ये ऐसे लिखो, ये पॉइंट लिखो, तो खुद लिखे न जाएगा, तभी पता चलेगा कितना लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। बात समझ में आई? अब ये बात समझ में आई? हाँ। तो बहुत इंटेलिजेंट है तो समझ सकता है फटाफट सब बातों को। हाँ, तो समझने की, सब बात को जैसे बने वैसे समझने की कोशिश करने की। मेरा हिस्ट्री में मेरे को बिल्कुल आता नहीं था, फिर मैंने एक बार ठान ली कि मेरे को समझना ही है, तो समझ लिया ना, तो पूरी स्कूल में हाईएस्ट मार्क आ गए। मैं तो बहुत खुश हो गया, हंसता था कि अरे कैसे आ गए। लेकिन समझने के बाद सब चीज आसान हो जाती है। जब तक रखते हैं ना तो आसान नहीं होती है। समझने के बाद चीज एकदम इतना इजी हो जाती है, इतना इजी हो जाती है कि पूछो नहीं। किसी को भी हम बता सकते कि इतना इजी है, कर डालने कुछ नहीं है यार इसमें। परेश इसलिए ऐसा दादा है। दरअसल को प्रॉब्लम है हिस्ट्री का। किसको? दरअसल को क्या प्रॉब्लम है? दरअसल बोलो। हाँ, वो उसमें कंटाला आता है। हाँ, कंटाला आता है, सही बात है, मेरे को भी बहुत कंटाला आता है। लेकिन आप थोड़ा समझ के पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। खाली नक्की करना है आपको। मतलब ऐसा नहीं, अपने आप जब मैम वो चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं नींद आती है। हाँ वाह, बट आपको एक बार नक्की करना पड़ेगा कि मेरे को समझना है और समझ के पढ़ना है। हाँ। वो ऐसा नक्की करोगे ना तो आ जाएगा। और नींद आती, वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है ना, इसलिए नींद आ जाएगी ना। लेकिन हिस्ट्री में है ना ज्यादा करके वो युद्ध होता है, किसने राज किया है, कौन से साल में क्या किया है, तो वो इतिहास इतिहास सब मेमोरी पावर अपना बहुत बढ़ता है। तो हाउ टू रिमेम्बर, तो आपको टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। जब समझना है तो टेक्निक डेवलप हो जाएगी आपसे। ठीक है? हाँ। जो सब्जेक्ट बोरिंग है ना वही सब्जेक्ट आपको ज्यादा डेवलप करता है। तो टेक एन एडवांटेज ऑफ योर सब्जेक्ट। हाँ। आपको सब्जेक्ट 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 उसकी जगह पर है, बट सब्जेक्ट आपको डेवलप कर रहा है। समझ में आया ना? तो वो हाँ। सब्जेक्ट डेवलप, अपने आप को डेवलप करने के लिए उसको समझना है अपने को। हाँ। वो बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दो। ठीक है? परेश हाँ। दादा हाँ, ओ ये श्रेया तो समझ से करती है, पर वो छोटा छोटा मैथ में बहुत मिस्टेक करती है। ओके वो कैसे सोल्व करना पड़ता है? वो प्रैक्टिस करने का फिर। क्योंकि मेरा मेरा 12th के अंदर 40 में से 32 मार्क्स आए, तो मैं बोला मेरा तो 40 में से 39 या 40 आने वाले थे, क्यों क्या हो गया? तो मैंने सर को बोला सर बताइए, मेरा पेपर बताइए प्लीज। स्कूल में, कॉलेज में, 12th में तो पेपर बताया तो इट वाज अ स्मॉल मिस्टेक, 5 + 2 तो 7 के बदले 3 लिखा था। ख्याल में है ना? तो ऐसा सिली मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक। दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस या तो लैक ऑफ प्रेजेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो ऐसा होता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करे तो आ जाता है, दैट्स फाइन। हाँ। ठीक है श्रेया। हाँ।
बात समझ में? थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने का। जो कोई बार मैथ्स के अंदर 3-4 स्टेप हम डाल देते, कर ये तो मालूम है, इसके बाद यही जवाब है, ऐसा डायरेक्ट लिख डालते थे। ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय जाने का। हाँ, मैं वो ऐसे ही करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, पर फिर मैंने एक दिन 6+4=11 लिख दिया, उसमें रॉन्ग हो जाता है हाँ, तो तो थोड़ा एब्सेंट हो जाती है ना, तो कभी प्रेजेंट नहीं रहती है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बरोबर है, सब बरोबर चल रहा है, मुझे आता है आता है आता है, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस करेगी तो आ जाएगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। जितना हो दर्शना, सके उतना समझने की कोशिश करो। दर्शना आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, दर्शना हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है स्टडीज में? ये सब बता, परेश दादा ने बताया सब, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स में प्रैक्टिस के बदले पहला जो प्रॉब्लम मैथ्स में बुक के अंदर जो दिया है ना, उसको समझने की कोशिश करो कि कौन से कैसे हिसाब से उन लोग सॉल्व करते हैं, किस हिसाब से सॉल्व करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट 2-3 एग्जांपल्स विच आर गिवन, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। फिर खुद प्रैक्टिस करने की, पहला समझने का, फिर खुद प्रैक्टिस करने का, पूरा चैप्टर खत्म करने का, वो खत्म हो गई बात। हाँ, लेकिन पहला समझने का, अपन हाँ। अपने हिसाब से सॉल्व कर डालते तो बोला हो गया, वो सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं। समझने का, प्रॉब्लम समझने का, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, वो देख समझने का। जितना समझोगे उतना फटाफट हो जाएगा काम। फिर प्रॉब्लम नहीं रहता है, फिर खाली सॉल्यूशन, खाली पेपर में बस लिख के खत्म करने का, सॉल्यूशन हो गया। हाँ, ठीक है। भैया और हिताक्षी बा, हाँ, आपको प्रॉब्लम था तो आपने कैसे सॉल्व किया मैथ में? मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम था तो मैंने क्योंकि मैं पेपर तो देखा था, मैंने पूरा पेपर देखा था, तो मेरे सम सारे रॉन्ग ही थे, जो रॉन्ग हो थे वो। और बाद में मैंने घर आके मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया था क्वेश्चन पेपर में से, और उसमें मैंने मल्टीप्लाई का डिवीजन कर दिया था, डिवीजन का मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ, वो गलती किया, ऑपोजिट किया। तो परेश दादा अंडरस्टैंडिंग कम थी ना उससे। है मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन किया, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन किया, तो टेंशन होता है ना, पेपर लिखते वक्त टेंशन होता है, पेपर लिखते वक्त टेंशन हो जाता है तो आदमी गलती करता है। इसलिए जितना समझ के पढ़ते हैं तो टेंशन नहीं आता है, शांति से काम करके खत्म, निपटारा हो जाता है, और पेपर बिफोर टाइम खत्म हो जाता है। और जब शांति से, जब समझते नहीं है तो पेपर लिखने को भी टाइम लगता है। और टेंशन आता है कि बराबर होगा कि नहीं। समझने के बाद पेपर में कितने मार्क आएंगे खुद को ही पता चलेगा। 40 में से 35 आएंगे, 30 आएंगे, 25 आएंगे, खुद को पता चलना चाहिए मेरे इतने मार्क आने चाहिए। 1-2 मार्क इधर उधर रहता है, बात ठीक है। और जो दूसरा पढ़ाई समझ के बाद नहीं जाता है, उसको मालूम ही नहीं होता मेरा रिजल्ट क्या आएगा। मेरी मम्मी को पता होता है कि कितने मार्क्स आने वाले, मम्मी पहले से बता देती है कि इतने मार्क्स आएंगे तेरे। हाँ, तो उसको समझ है उसका मतलब, तो वो सीख जाओ आपके मम्मी के पास से। हाँ, दैट्स एन आर्ट। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आज बच्चों लोग बहुत बहुत टिप्स मिला, तो अभी थोड़ा ये ध्यान से करोगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, जय सच्चिदानंद। अभी कोई चीज का बोधरेशन नहीं लेने का, पढ़ाई है तो पढ़ाई है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करने की। और टेंशन के कारण पढ़ाई बोरिंग है, ऐसे कारण वो समझने की शक्ति अपन समझते नहीं है, फिर जैसा वैसा पढ़ते हैं। तो जैसा वैसा पढ़ने में टाइम भी ज्यादा लगता है, और समझने में भले एक बार शुरुआत में टाइम ज्यादा लगे, लेकिन बाद में एकदम हल्के से हो जाता है, टाइम भी नहीं कम लेते उसमें। तो ऐसा करने का, हाँ, समझने की कोशिश करो।
और वो समझने के लिए दादा भगवान का असीम जय जयकारो बोलने का समझ में मस्त आएगा, या तो दादा भगवान का चेहरा याद करने का। दादा सब्जेक्ट पढ़ने बैठता हूँ, मुझे समझ में आया, ऐसी कृपा करना, शक्ति देना, और फिर करने का। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया ना? आज तो बहुत अच्छा आपको मालूम पड़ गया। अभी अच्छी तरह से काम करो। ओके, जय सच्चिदानंद।